Morning students. Now today we are going to learn the next topic of pair of straight line, that is the angle between the pair of lines. Means अगर कोई भी दो lines है which are not passing through origin or which may be passing through origin, तो उन दोनों line में से जो acute angle, when the lines are intersecting, the acute angle between the two lines can be calculated by using the formula, and we have to know what is the formula to find out the acute angle between the two lines. Let us see here. कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो लाइन्स हैं as shown here. This is what the x axis and this is the y axis, means this is the coordinate geometry. In that coordinate geometry, let us we have here the two lines with the slopes. This is the first line with the slope m1 and another line with the slope m2, and they are intersecting at the particular point. If theta is the acute angle between the two lines, then the angle between the pair of lines, we consider here the two lines with the slopes m1 and m2 in a coordinate geometry, and if theta is the acute angle between them, then formula for the angle is tan theta is equals to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. तो ये अगर दो लाइन्स है जिनके स्लोप्स दिए हुए हैं तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे. बट हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक फार्मूला है, एक थ्योरम पूछा जाता है हमेशा. That theorem is show that the acute angle between the pair of lines through origin, जो कि homogeneous equation था, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. This is the equation, homogeneous equation. इसमें जो दो lines है like this way, there are the two lines which are passing through origin, and if theta is the acute angle and the combined equation of the pair of line is ax square plus 2hxy plus by square, so then that angle is always tan theta is equals to mod of 2 under root of h square minus ab divided by a plus b. So we have to find this formula. So let us we take the proof. We consider here the two lines and which are passing through origin. अभी इनका जो joint equation है, हमने पिछली बार देखा था कि जो दो लाइन्स होती है passing through origin, उनका joint equation हमेशा होता है homogeneous equation. So we consider here the joint equation of the pair of lines through origin is, it is homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. अभी इसमें जो दो लाइन्स है, ये जो दो लाइन्स है इसके हम कंसिडर करते हैं स्लोप्स. तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप कंसिडर करते हैं हम m1, और जो सेकेंड लाइन है इसका स्लोप कंसिडर करते हैं m2. तो हमने पिछली बार देखा था दो फार्मूलेज कि अगर m1 और m2 दो लाइन्स है तो m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 होता है a बाई बी. सो दीज आर द फार्मूलाज, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स. नाउ वी हैव द आइडेंटिटीज a माइनस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर. देन यूजिंग दैट टू आइडेंटिटीज वी हैव हिज फार्मूला. ये जो फार्मूला है हमने पिछले 10th क्लास में भी देखा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी. तो इसका यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2. नाउ वी हैव m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2, पुटिंग दैट वैल्यूज माइनस 2h बाई बी माइनस 4 इंटू ए बी. वेयर इज बी स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 होगा, एच स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किए मल्टीप्लाइड बाई बी बोथ साइड. नाउ बी स्क्वायर इज अ कॉमन, 4 इज कॉमन, विथ टेक हियर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 जो कि कॉमन है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर. नाउ टू कैंसलाइज दिस स्क्वायर वी टेक हियर द स्क्वायर रूट, वी गेट हियर m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 2 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी. नाउ ये तो मिल गया हमें m1 माइनस m2, ये वैल्यू मिल गई. अभी हमने जो देखा था कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है दोनों लाइंस के बीच में, अगर एक्यूट एंगल है थीटा, तो हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. पुटिंग आउट द वैल्यूज ऑफ m1 माइनस m2 एंड m1 इंटू m2, ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुटअप की है. m1 माइनस m2 की वैल्यू है 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी, और m1 इंटू m2 की वैल्यू होती है a बाई बी. यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है a इंटू बी, 1 इंटू बी बी प्लस ए यानी a प्लस बी,
and the denominator is same, that is we cancel out. So we have this formula, therefore tan theta is equals to mod of 2 under root of h square minus ab divided by a plus b. So this is the formula for angle between the pair of lines through the homogeneous equation of lines. Now there are two conditions, whether the given lines are parallel lines or perpendicular lines. So here are the two conditions of parallel and perpendicular lines. So if the lines are perpendicular, then what happens? तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा होता है -1 और -1. सो हमारे पास फार्मूला है m1 इंटू m2 a बाई बी. तो a बाई बी इज इक्वल्स टू -1, b को हम इधर लेके जाएंगे तो a इज इक्वल्स टू -b और a प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0. ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की. अगर इस इक्वेशन में कोई भी जो होमोजेनियस इक्वेशन में है a प्लस बी की वैल्यू अगर 0 है, सो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. हियर इज सेकंड कंडीशन दैट इफ lines are parallel, if the two lines are parallel, then what happens? थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, थीटा होगा 0. और अगर थीटा 0 होता है तो क्या होगा हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी की वैल्यू बन जाएगी 0. ये वैल्यू अगर 0 होती है तो ऑब्वियसली इनको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी हो जाता है 0 और एच स्क्वेयर बन जाता है ए बी. इफ एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी, this is the condition for the two lines which are parallel. Now we take here few basic examples depending on angle between the pair of lines as so here are two examples. Find the acute angle between the lines represented by, ऐसी इक्वेशन दिए होंगे. हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिया है जिसमें b इज इक्वल टू 0 है और ये जो सेकंड इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन. So we consider here the first example is x square plus xy equals to 0. The solution of the first example, let us see here. The given joint equation is, equation of pair of line is x square plus xy equal to 0. अभी जो भी इक्वेशंस होंगे यहाँ पे आइदर ये हो कोई भी इक्वेशंस हो तो उसे हमें कंपेयर करना है विद द होमोजेनियस इक्वेशन. लेट अस सी ए एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर है, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू 1 हो जाएंगी. यहाँ पे 2hxy है, यहाँ पे सिर्फ xy है, तो ऑब्वियसली 2h की वैल्यू 1 तो h की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और b इज इक्वल टू 0 क्योंकि y स्क्वेयर इज एब्सेंट. सो b इज इक्वल टू 0. नाउ इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल देन यूजिंग द फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. हमने वैल्यूज पुटअप की यहाँ पे 2 एज इट इज. h की वैल्यू है 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 एंड स्क्वायर -1 विच इज वैल्यू ऑफ a इंटू बी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 रहेगा. यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, अंडर रूट में रहेगा 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4 और -1 इंटू 0 तो 0 बन जाएगा. सो हमें पता है 1/4 का रूट अगर निकालेंगे 1/2 हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 मिल जाएगा एंड 1/1 इज अगेन 1. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1. सो वी हैव हियर थीटा इज इक्वल टू π/4. दिस इज द एंगल between the two lines which are represented by the equation x square plus xy equals to 0. Now where is second equation? 2x square minus 6xy plus y square equals to 0. So we have here the given joint equation. The solution of second, that is the given joint equation of pair of line is, यहाँ पे इक्वेशन है 2x square minus 6xy plus y square equals to 0. अभी इसे भी हमें कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus 2hxy plus b square equals to 0. कंपेयर करने के बाद में a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, h की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 2h की वैल्यू -6 है तो h की वैल्यू -3 हो जाएगा और b की वैल्यू बन जाएगी 1. इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. पुट आउट द वैल्यूज, वी गेट हियर द 2 अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 2 इंटू 1, देन a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 1. सो वी हैव हियर 2 अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 इंटू 1 इज 2. सो आफ्टर सोल्यूशन वी हैव हियर tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 3. तो ये मिल जाएगा. अभी हमें पता है कि 2 अंडर रूट ऑफ 7/3 किसी भी एंगल की tan वैल्यू नहीं है,
तो हम इसमें परफेक्ट एंगल नहीं निकालेंगे, सो देयरफॉर हमने टैन को इधर शिफ्ट करेंगे, सो थीटा मिल जाएगा हमें टैन इनवर्स ऑफ 2√7/3। सो दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। थैंक यू।